हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लर्न नाउ। आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स जो किसी भी लॉ के एग्जाम में या जुडिशरी के एग्जाम में या किसी भी लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम किसी भी लीगल कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, उसके गाइडलाइंस को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में, जिसमें है लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, when two adult individuals agree to enter a wedlock and they have given their consent piously, then there is not necessary to take consent of the family or community, because when two educated younger boys and girls are choosing their life partner, then they have the right to choose their life partner freely. Supreme Court observed one of its judgment in Shafeen Jahan versus Ashokan KM and others, in which case court said that right to marry a person of choice was held to be integral part of the Constitution of India under Article 21, in which article right to choose is the freedom of an individual, and it is the right which is live within a core zone of privacy which is inviolable. Supreme Court also said in a judgment in Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, in which autonomy of an individual in relation to family and marriage were held to be integral to the dignity of the individual. Now, next case is Devilal versus State of Madhya Pradesh, in which case court considered to what extent could the benefit under Juvenile Justice Act be extended where offender was above 16 years and less than 18 years on the day of the offense was committed. जहां पे अक्यूज को गिल्टी कमिट कर दिया गया है और जो अक्यूज पर्सन है उसकी एज जिस दिन उसने ऑफेंस कमिट किया है 16 साल से तो ज्यादा है लेकिन 18 साल से कम है। इस केस में कोर्ट ने यह बताया कि जो भी कोर्ट ट्रायल कर रहे हैं वो अपने प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करेगी, बट for the purpose of determining the quantum of fine, it will remand it to the Jurisdictional Juvenile Justice Board. Court also said in his judgment, which is Jitendra Singh versus State of UP, जहां कोर्ट ने यह बताया कि कोई भी कोर्ट जो ऐसे केस की ट्रायल कंडक्ट कर रहा है वह जब तक उस अक्यूज को गिल्टी कमिट नहीं कर देता है तब तक वो प्रोसीडिंग्स उसी कोर्ट में कंटिन्यू रहेगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस 2000 एक्ट, एंड it will remand it to the Juvenile Justice Board for the purpose of determining the quantum of fine. Now, moving to the next case, the Chief Election Commissioner of India versus Mr. Vijay Bhaskar. In this case, court held that freedom of speech and expression also extend to reporting the proceedings that happen in courts, including oral observation made by the judges. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)
जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, वहीं पे फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी कवर किया गया है। एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस इंक्लूड freedom to cover court proceedings too. If we are talking about the digital oriented market and we look forward to the internet for the information, then in that case we would not prevent any person to report the proceedings via new medium, that is digital medium. So court of justice is a public forum, and when it is through the publicity that citizens are convinced. अगर हम बात करें तो कोर्ट की ट्रायल जहां पे पब्लिक के लिए ओपन है और जहां पे किसी भी प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट किया जा सकता है, तो यह हर पर्सन का राइट है कि वह कोर्ट की सभी प्रोसीडिंग्स को देख सकता है और उन्हें समझ सकता है। यह उसका राइट टू फ्रीडम है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) में बताया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस के बारे में, जो है सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, इस केस में डाउरी डेथ के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी के सेक्शन 304B में डाउरी डेथ को एक ऐसा ऑफेंस बताया गया है जो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और लेजिस्लेटिव का यह इंटेंशन है कि वह टू कर्ब सोशल एविल ऑफ द ब्राइड बर्निंग एंड डाउरी डिमांड। Therefore, the bench laid down certain guidelines for dowry death trials in the lower courts. कोर्ट ने गाइडलाइन दी कि अगर 304B, जैसा कि हम आईपीसी में देखते हैं, इसके लिए क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिसे कोर्ट स्टैब्लिश करने के लिए रिक्वायरमेंट है, तो यह मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बताया है कि ऐसे 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके फुलफिल करने के बाद हम यह बोल सकते हैं कि सेक्शन 304B आईपीसी का कन्विक्शन सस्टेन कर रहा है, जिसमें पहला है कि जो वुमेन है उसकी डेथ caused by burn or bodily injury or otherwise than under normal circumstances. 2 is such death should have occurred within 7 years of her marriage. 3rd is she must have been subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband. 4th is such cruelty or harassment should be for or in connection with demand of dowry. And 5th is such cruelty or harassment should be meted out to the woman soon before her death. Once, और अगर एक बार कोर्ट सेक्शन 304B आईपीसी के कन्विक्शन को सस्टेन कर देती है, तो वह एविडेंस के सेक्शन 113 में यह प्रिजम्पशन बना लेती है कि yes, that person has committed the crime of dowry death to the woman that is subjected to cruelty or harassment. Supreme Court gave certain guidelines in which, when we are talking about soon before her death, as mentioned under section 304B, does not mean that just before the death of the woman. Court will have to keep in mind that there should be a proper connection between dowry death and cruelty for dowry demanded by the husband or its relatives. Next is, when the court used section 304B of IPC and while interpreting it, they should keep in mind that
legislative intent to curb the social evil. It means कि जहां पे भी कोर्ट 304B को यूज कर रही है वहां पे कोर्ट का ये मीनिंग है कि वह ऐसे सोशल इविल को खत्म करना चाहती है जो ब्राइड और डाउरी डेथ की जाती है जहां पे किसी भी वुमेन्स को क्रूएल्टी और हरासमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, जब प्रोसिक्यूशन 304 के सभी इंग्रेडिएंट्स को स्टैब्लिश कर देता है जैसा कि अभी हमने देखा था, उसके बाद कोर्ट यह रिबटेबल प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113B ऑफ एविडेंस में लगा देती है कि यस इट विल ऑपरेट अगेंस्ट द अक्यूज, कि अक्यूज ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है। इसके बाद अक्यूज के पास बर्डन ऑफ प्रूफ चल जाता है कि वह अपने ऑफेंस को अपने फेवर में प्रूफ करे। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसमें कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी के बारे में बात की है। Supreme Court held that dying declaration are admissible in evidence on the principle of necessity। जहां पे भी किसी कोर्ट के पास कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा है और वहां ऐसी नेसेसिटी प्रूव हो रही है कि किसी भी और एविडेंस को प्रूव नहीं किया जा सकता है, उस केस में कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल करने की बात कही है। और डाइंग डिक्लेरेशन कन्विक्शन का बेस फॉर्म किया जा सकता है, बट जो भी डाइंग डिक्लेरेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए एंड कॉजेंट एंड प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑकरेंस दी गई होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं दिया हुआ होना चाहिए। अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करें तो यह एविडेंस के सेक्शन 32(1) में बताया गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है जो या तो रिटर्न है या वर्बली डिसीज के द्वारा दिया जाता है, और this statement carries the explanation of circumstances that led to the death of the person। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो उसकी डेथ के कॉज के बारे में बता रहा है या ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेस बता रहा है जिससे डेथ कॉज हुई है, उसे डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है। इसको लैटिन टर्म में लेटम मोर्टम बोला जाता है, जो वर्ड्स बिफोर डेथ। डाइंग डिक्लेरेशन के पीछे हम ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर किसी भी पर्सन ने मरते मरते कुछ भी बोला है तो वह कोर्ट यह मानती है कि ऐसा स्टेटमेंट सच है और उसमें पूरी सच्चाई होती है। अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाने, जिसे कोर्ट में एडमिसिबल कब माना जाएगा, फर्स्ट है द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट बी इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड। जो भी ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए, और फिट स्टेट ऑफ माइंड सर्टिफाइड किया जाना चाहिए डॉक्टर के थ्रू। अगर डॉक्टर प्रेजेंट नहीं है तो विटनेस मस्ट टेस्टिफाई दैट विक्टिम वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, और दैट स्टेटमेंट सो मेड मस्ट नॉट बी अंडर एनी इन्फ्लुएंस। किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इफ मोर देन वन स्टेटमेंट इज गिवन and all of them are not constant with each other, then all dying declaration would lose their value। अगर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और वो किसी से भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो सारे डाइंग डिक्लेरेशंस की वैल्यू खो जाती है। तो कोर्ट ने जयम्मल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू की और सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि अगर कोई भी पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन का एडमिसिबल कराना चाहता है तो इसे सर्टेन पॉइंट्स को फुलफिल करना होगा, उसके बाद ही डाइंग डिक्लेरेशन सोलली बेसिस पे कन्विक्शन का बेस माना जा सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने
डाइंग डिक्लेरेशन को मना करते हुए एडमिसिबल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन के केस में यह बताया कि जिस भी पर्सन की डाइंग डिक्लेरेशन दी गई है वो इतने फिट ऑफ स्टेट माइंड में था ही नहीं जितनी डाइंग डिक्लेरेशन एक्यूरेट थी, और वो जो डिसीज था वो इतना इलिटरेट और ओल्डर पर्सन था कि वह इतने अच्छे से सर्कमस्टेंसेस को नरेट कर ही नहीं सकता था। और जो स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर के दिए गए थे वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन था, और उन्होंने पुलिस ऑफिसर जिसने ये एडमिट किया है कि ऐसा कोई भी एंडोर्समेंट उसने डॉक्टर से नहीं लिया था कि दैट इंजर्ड वाज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड और नॉट, एंड देयर हैज बीन नो एविडेंस ऑफ द डेथ बीइंग होमिसाइडल। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पॉइंट्स को बताते हुए इस केस में यह बताया कि डाइंग डिक्लेरेशन के कन्विक्शन को कोर्ट ने मना कर दिया है और इसे कन्विक्शन का सोलली बेस नहीं माना गया है। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और हम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही जजमेंट की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम आगे और भी जजमेंट्स के बारे में देखेंगे, और आप सब मुझे सजेशंस दीजिए कि आप सभी को ऐसे कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में फैक्ट्स एंड इश्यूज एंड कंक्लूजन्स देखने हैं। थैंक यू एवरीवन। Like and share to my channel Just Learn Law.